क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1x बैट में आपका स्वागत है। देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल्स में, जहां चारों टीम के बीच में मैचेस होने वाले हैं। सबसे पहला मैच होने वाला है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के बीच, और दूसरा मैच होने वाला है इंडिया और इंग्लैंड के बीच। आज की पूरी चर्चा हम लोग आज के पहले मैच पे करेंगे, जो है अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका। ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस पे कई सारी इंफॉर्मेशन आज हमें हमारे गेस्ट यहाँ इस प्रोग्राम में देंगे। तो चलिए वेलकम करते हैं हमारे दोनों प्रोग्राम के गेस्ट का, जो है नोएल डेविड, फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर जिन्होंने वेस्ट इंडीज में भी खेला है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 211 नॉट आउट अगेंस्ट आंध्रा। वो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े हैं। नोएल डेविड, आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में। और दूसरे हमारे गेस्ट हैं गोपाल शर्मा, डेटा एनालिस्ट, जो आज हमारे साथ जुड़े हैं पूरे मैच पे चर्चा करने के लिए, एनालाइज करने के लिए कि आज क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, टीम्स की कंडीशन कैसी है, टीम्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है अभी तक की। तो चलिए दोनों का स्वागत करते हैं, नोएल डेविड और गोपाल शर्मा। Thank you, Damni. नोएल, Nice to आपका see you. स्वागत है। सेम हियर, सेम हियर। हाय गोपाल। हाय हाय। आज आप दोनों एक्साइटिंग है अफगानिस्तान का। बहुत एक्साइटिंग है। आज आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। नोएल, आपकी तो एक्सपर्ट ओपिनियन की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और पीछे का Yeah. जो थोड़ा हमें एनालाइज करना है डेटा एनालिटिक के एंगल से, वो पूरा गोपाल आज हमारे साथ मदद करेंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करी जाए, क्या कहते हैं आप लोग? Yeah. Yeah. जी बिल्कुल। कुछ ही दिन का इंतजार है और हमें फाइनल्स में किसके हाथ में कप होगा ये मिलने वाला है, कौन सी कंट्री ले जाने वाली है ये भी पता लगेगा। पहला मैच है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही पूरे में, पर अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने 5 के 5 मैचेस को जीता है, जबकि अफगानिस्तान ने 2 मैचेस हारे हैं और 3 जीते हैं। तो नोएल, आज कितना चैलेंजिंग रहेगा अफगानिस्तान के लिए साउथ अफ्रीका को बीट करना, आपको क्या लगता है? Look, it's going to be very challenging for the Afghanistan because South Africa has picked their game. They have come, they're beating all everybody in the league groups. Narrowly. You can't say hands on, but narrowly winning each game. Against Nepal, it was a narrow one run victory, and then the last game also in the Super 8. It was an interesting match. But what I think about South Africans are, the long due of a cup, ICC Cup. They are named as chokers. So I'm worried about that when they come to semi-finals. I hope they don't get that semi-final fever where they choke themselves at the right time. And I don't think that should happen this time because they have the players who have all the abilities to win the match for the South Africans. What I feel, Adam Markram, one of the finest batsmen and one of the greatest leaders of at present for the South Africans. I think Hendricks is a good opener, young lad who's just come into the side. David Miller, we all know what kind of destruction he can do with the team. He has won matches for the South Africa, not only in the past, even in the league phase, he's got a quick 560, won the match for them. Then we have Stubbs, a youngster. I've seen him during this IPL. What kind of player he's very destructive. He's a clean eater of the ball, good fielder. Runs around all over the parts of the ground. He has good arm also to throw. And I don't forget, the wicketkeeper, Decock. He's the guy. He's you can say he's the captain, like for the team, a senior most player of the team, handling the ship along with him. The 2-3 knocks what he has played for the Africans has been just splendid. That Knox has brought him back into that form which everyone are scared of. Because he is very destructive in the first 6 overs. If he gets going, no one can stop him. So I feel that South African with Henrik Carlsen coming in between, one of the finest T20 player is Henrik Carlsen. Because why I say is because he is a clean hitter of the white cricket ball. Clean hitter. You can see him hitting long sixes, standing and hitting, and he adapts to situation of the game.
When it's needed, he hit. When it's not needed, he rotates the single. Such is Carlsen. Good fielder. I know he's not keeping because of Decock, but a good fielder also. So I think they have a good bowling attack. Don't forget Nokia. Don't forget Rabada. Don't forget the Shamshi. You know, Shamshi has been bowling so well, and I find that they can be a great team to go on to beat Afghanistan. But there's a question mark. Don't forget about the Afghanistan team. You know, they have beaten the best sides in this T Format 20 World Cup. They have beaten New Zealand, they have beaten Australia. So they must be confident, high in confidence, you know, and they must be ready. I feel they are hungry. They need to prove this world that from an Yes. associate members to a ICC member in Yes. 2017 to a semifinals of the Semi-finalist ICC in T20 World. 2024. So that shows the improvement because they don't have the facilities, they don't have Yes. league system, they don't have domestic cricket. What they do, they go around world playing this T20 format. We have 8 players playing IPL. Afghanistan players playing IPL. They go around playing Big Bash, they go around playing Canadian League, they go around playing Caribbean League, and the PSL. So they only get experience by playing this T20. And I find that these guys are having that hunger to go out there and to prove this world that we also can win a trophy without any league system or domestic system in our country. I know Rashid Khan is the captain. You saw him Yes. coming back into form with his bowling. We have Nabi, the veteran, who has been throughout from the start of the Afghanistan, from the associate members to the ICC. He has seen the ups and downs of cricket of Afghanistan, and don't forget they have a good bowling spin attack and Right. supported by medium. So I find that Right. this game will be the one game which we all be loving to look at, and we'll be cheering for both the teams because both are the first time entered into a semi-final. Right. And South Africa has always been known for their strong players, strong performance and everything. But when it comes to अफगानिस्तान, इन्होंने इस बार बिल्कुल आश्चर्यचकित कर दिया है सबको अपनी परफॉर्मेंस से. कभी जीत कभी हार लगा हुआ है, बट दे आर नॉट गिविंग अप. दे आर लाइक एक पैशन है उनके अंदर कि कैसे भी करके इस बार उन्हें जगह चाहिए ही चाहिए, और उन्होंने अपनी जगह ले भी ली सेमीफाइनल्स तक. गोपाल, आपका डेटा क्या कहता है इन दोनों टीम के लिए? आपका आपका क्या एनालिसिस है अभी तक अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका की दोनों टीम्स के बारे में? वही है दामनी, जिस तरीके से नोल सर ने कहा कि साउथ अफ्रीका नो डाउट, मतलब जिस तरीके से हेनरी क्लासन, क्विंटन डी कॉक, डेविड मिलर, लेकिन इस वर्ल्ड कप में अगर बात करें तो डॉट्स बॉल सबसे ज्यादा अगर किसी टीम ने खेले हैं तो साउथ अफ्रीका है. तो ये कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा उनका वो जो आईपीएल में जिस तरीके से हेनरी क्लासन चल रहे थे, नो डाउट अलग ही मतलब नजर में आ रहे थे. वर्ल्ड कप में थोड़ा सा कह सकते हैं सिक्सेस के मामले में अगर देखें तो वो अमेरिका से भी नीचे हैं. यानी जो सिक्स हिटिंग मशीन उनको जो बोला जाता था, एक दो प्लेयर्स अगर चल रहे हैं नो डाउट, नीचे से डेविड मिलर चल रहे हैं, ऊपर से क्विंटन डिकॉक जिस तरीके से सुपर 8 से फॉर्म पकड़ी है उन्होंने, तो नो डाउट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं. लेकिन वही है कि बल्लेबाजी जिसके लिए जानी जाती थी वो क्लिक नहीं कर रही है. लेकिन गेंदबाजी में अगर बात करें तो सबसे कंजूस यानी सबसे इकोनॉमिकल अगर बात करें तो इस पूरे सभी टीमों में तो वो रही है साउथ अफ्रीका. सबसे कम रन खर्च करने वाले इनके पास गेंदबाज है, चाहे बार्टमैन हो जिनको लाए थे एक नए तेज गेंदबाज के रूप में, या तबरे शमसी, केशव महाराज, नोकिया हो गए, सभी मतलब यूनिट में काम कर रहे हैं और सभी इकोनॉमिकल रह रहे हैं. ये उनके लिए सबसे बेहतरीन बात है. जो अमेरिका में हो उसके लिए जो मुकाबले रहे उनके लिए बेहतर. और अब वेस्ट इंडीज में सुपर 8 में वहां पे आए तो वहां पे भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी वहां पे. जी गोपाल जी. जी तो राम. यहाँ पर स्टेडियम बदल रहा है. आज आज स्टेडियम ब्रायन लारा स्टेडियम है. इस स्टेडियम में अभी तक इस T20 वर्ल्ड कप में मैचेस नहीं हुए हैं, तो ये नया स्टेडियम है खिलाड़ियों के लिए, इस वाले T20 के लिए. इस स्टेडियम के बारे में कुछ बताएंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि किस तरीके से यहाँ पर पिच रहती है, कोई रन ज्यादा आराम से बनते हैं, बॉलिंग के लिए अच्छा है, या क्या क्या चीजें यहाँ पर इस स्टेडियम में? आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसे? Gopal, it's you.
नहीं दोनों में से मैं नोएल, एक्चुअली मैं चाहती हूँ आपसे शुरुआत हो और नोएल Okay. गोपाल कैन Okay. टेक ओवर। गोपाल के See, पास look, भी स्टैट्स होंगे बहुत सारे। there's been a lot of matches played at Brian Lara Cricket Academy, and I find that this academy is on his name, and it's new one because where we played, it was a different stadium totally, or it can be the same renamed on him. We have no idea because it's been in '97 when I visited West Indies with the team. So I think, but the wicket, as far as what we saw, the wicket was good. But matches being played on that, I think, as I said before, it can, uh, uh, but let me correct you. Uh, One thing in Brian Lara Cricket Academy is that the surface is hard for what I came to know, where the batsman can be easy on the stroke. You can see good sixes and all that, and at the same time it does help the bowlers. So it's a friendly type wicket with both the helping both seamers and the batsmen. But outfield, I think, will be good. The boundary is a bit smaller in size, so we will see some exciting game on that ground because uh, we have the batsmen who can explode on that ground. We have the huge guys who can hit the ball outside the ground also. राइट गोपाल, आपका कुछ स्टैट्स इसमें कुछ हाँ है इस पूरे हाँ स्टेडियम पे प्लीज। हाँ, वही है कि इस स्टेडियम में अफगानिस्तान एक मैच खेल चुकी है पीएनजी पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ, और वो जीत चुके हैं। यानी साउथ अफ्रीका इस मैदान पे इस वर्ल्ड कप में अभी तक नहीं खेली है, तो कह सकते हैं कि एक मैच खेलने का उनको एक्सपीरियंस है यहाँ पे, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आएंगे। और जिस तरीके से वहाँ पे फजल हक फारूकी ने गेंदबाजी कराई थी, और इस जी पूरे टूर्नामेंट्स में अगर बात करें तो फजल हक फारूकी गेंदबाजी करा रहे हैं, तो वो शायद एक खतरा बन सकते हैं, क्योंकि 5 विकेट, 4 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट लगातार वो मतलब ले रहे हैं विकेट किसी भी टीम के खिलाफ हो। और पिछले मैच में जिस तरीके से राशिद खान ने गेंदबाजी की, गुलबदीन नईम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी की, तो ऐसा नहीं है कि 2-3 खिलाड़ी हैं इनके, एक जी ग्रुप में आ रहे हैं और मतलब वो सभी एक तरीके से क्लिक करते हुए नजर आ रहे हैं। जी नोएल और गोपाल, इस बार अगर हम देखें पूरे टी20 वर्ल्ड कप में तो रन्स का कोई हिसाब ही नहीं लगा सकता। एक एवरेज अगर निकालना शुरू करेंगे तो कुछ पता ही नहीं है। 205 भी बने हैं, 115 भी बने हैं, 105 भी बने हैं, ऐसे ऐसे टारगेट्स भी बने हैं। तो आज के गेम में अगर मैं आपसे कहूं आप दोनों से कि प्रिडिक्शन करें कि कितने रन बना सकती हैं दोनों टीम, क्योंकि हमने परफॉर्मेंसेस देख चुके हैं इनकी पुरानी, तो आपको क्या लगता है कि कितने रन्स का हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज हम किस तरीके के टारगेट को यहाँ पर देख सकते हैं? नोएल, आपसे सवाल है ये। Look, Damni, if the wicket is really nice, placid, which helps even the seamers or where the ball is coming, I think the South Africans love the ball to come onto the bat. If it does come, then we can see a huge score because Decock, Carlson, Makram, they love because the wickets what they play back at home at South Africa, it's all about pace. So these batsmen are used to that. But if it's slow and turning, then I think we can see an average of somewhere around 180 or something like that. Because anything 180 on a slow track where the ball is gripping and turning, 180 will be very good score because it will be very difficult for the batsman to make a lot of stroke making shots, and at the same time to convert anything also they will find it hard. So I find if according to whatever the sources is, if the wicket is placid and good for batting, anything about 200 we can see, around 230 or 220 like that. But if the wicket is slow, then it's going to be 180 be a winning score. राइट 180 एंड 200 अबव, राइट 220 आई विल टेक इट एज दिस। गोपाल, आपका क्या अनुमान है? वही है कि अफगानिस्तान का पैटर्न क्या रहा है अगर पूरे इस वर्ल्ड कप में देखे, या टी20 में उनका पैटर्न है कि अगर वो पहले बल्लेबाजी करें 150 160 तक बना लेते हैं, तो उसके बाद वो किसी टीम को उतना बनाने देते नहीं। वैसे मतलब वो कहते हैं ना कि बटरफ्लाई इन द स्टमक, वो पहले बना लेते हैं तो उसके बाद वो गेंदबाजी उनके पास वो है। तो अगर जी साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करती है तो नो डाउट अगर वो 180 तक भी बना लेते हैं जिस तरीके से नोएल सर ने कहा, तो वो उनके लिए होगा सही। अगर साउथ अफ्रीका बाद में बैटिंग करती है तो अफगानिस्तान को रोकना पड़ेगा 130 से 140 तक, नहीं तो 160 अगर 70 बन गए तो मुझे नहीं लग रहा। साउथ अफ्रीका के पास है वैसे हेनरी क्लासन, मिलर, स्टब्स, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उनके लिए मुश्किल होने वाली, क्योंकि नूर अहमद, राशिद खान, मोहम्मद नबी और इधर फजल हक फारूकी, नवीनुल हक, ऐसे ऐसे गेंदबाज हैं जो 140-50 तो ये बहुत मुश्किल कर देंगे वैसे। और एक बात और कि
अफगानिस्तान ने अभी तक सभी टीमों को हरा दिया है वर्ल्ड क्रिकेट में, लेकिन सिर्फ 2 टीमें रह रही हैं, साउथ अफ्रीका और इंडिया। इन दोनों को आज तक नहीं हराई है, तो क्या वो हो सकता है, क्योंकि दोनों टीमें टॉप 4 में हैं, तो क्या जी। वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकती है उस तरीके से? काफी टफ मैच है, काफी इंटरेस्टिंग मैच भी रहेगा इसे देखने में, क्योंकि महायुद्ध शुरू हो चुका है वर्ल्ड कप का। T20 मेंस वर्ल्ड कप इसलिए जाना जाता है कि जो विनर होता है उसकी एक अलग ही इमेज रहती है, और वो कप को उठाने वाली विनर कौन सी कंट्री बनेगी उसका इंतजार है, कुछ दिनों में पता लग जाएगा। और आज अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका का इंटरेस्टिंग मैच है, तो आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। हमारे एक्सपर्ट्स ने बता और दिया उन्हें क्या लगता है। और जी एक गोपाल। और जाते जाते ये भी कहूंगा कि हमारे लिए अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं है टॉप 4 में, नहीं तो वो जी हमारे लिए बहुत अच्छा है। Australia WTC now, और 2000 whether Australia is there or not, England, we have to get past England यस because England जी is सर, the champion team. They have won the World Cup last time. Yes. So we have to, yes, we are confident, but at the same time, we have to get past England because they are also a good batting side. Yes, the spinners are not much effective like us, but they have a good bowling side. जी और वो ये भी है सर कि मतलब वो हर मैच लगभग डू और डाई खेल रहे थे। वो Yeah. जीते तो आगे, हारे तो बाहर। वो आईपीएल में कहते हैं ना कि जो जो चौथे नंबर की टीम होती है वो बहुत खतरनाक होती है ना, क्योंकि वो पीक करके आती है, जिस तरीके से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु थी, तो वही है, राइट टाइम पे पीक कर रही है इंग्लैंड Yeah. की। मैं 2 चीज बोल सकता हूँ जो लाइफ में बराबर होता है। एक चीज है, जाने वाले इंसान को कभी वापस ना बुलाओ। इंग्लैंड जाते जाते वापस बुलाए, और जागते हुए शेर को कभी उठाना नहीं, सोते हुए शेर को कभी उठाना नहीं, क्योंकि फिर जाग के वो बहुत बुरा हाल करेगा सबका। सो जी इट इज इंग्लैंड दैट a sleep never wake up a sleeping tiger, okay? And when a man is going, let him go, don't call him back. That was what I'm trying to say, because England were about to get out of this World Cup. They were about to be eliminated, but thanks to some 2 teams which they qualified, and they are now into the semi-final facing India. So we have to be little cautious about it. राइट। थैंक यू जेंटलमैन अपने सारे एक्सपर्ट्स ओपिनियन के लिए और इस मैच पे पूरे डिस्कशन के लिए। नोएल डेविड एंड गोपाल शर्मा, आपका एक बार फिर से शुक्रिया आज यहाँ आने के लिए और प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। क्रिकेट प्रेडिक्टर पावर्ड बाय 1xBat। थैंक यू।